हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 12th का एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर 16। ये चैप्टर 16 जो है काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज हम करेंगे इंडियन फिजिकल फीचर, यानी भारत के जो है देखा जाए तो भौतिक स्वरूप क्या है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो होगा कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बिहार के बोर्ड के बच्चे, उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। साथ में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी विस्तार पूर्वक इसमें जो है काफ़ी कुछ है, तो ये चैप्टर उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट ईयर द ग्रेट इंडियन प्लेटूज, देयर इज इंपॉर्टेंट ईयर द ग्रेट इंडियन प्लेटूज। The Great Indian Plateau lies to the south of the Great Northern Plain here. The Great Indian Plateau lies in the south of Great Northern Plain here. And this is the largest, is a physiographical division of our country. There is important here. This is the largest physiographical division of our country. It is a cover as an area of about 16 lakh square kilometer. There are 16 lakh square kilometer. There is one important here, and about half of the total area of the country. And this on the old rocky plateaus region. The topograph is a consist of a series of plateaus and a hill range in the interspace with the rivers valleys. Aravalli Hill is a mark the northern western boundary of the plateau and region. It's a northern and a northern eastern boundary is marked by their northern edges of the Bundelkhand and plateaus Kamur and the Rajmahal is a hill. There is an important here. Bundelkhand is an important plateau here. And there are western is a Ghat, Sahyadris and eastern Ghat is a mark. The western and eastern is a boundaries. Respectively, there is a great plateaus. Most of the area of plateaus has a height of the more than 400 meter above the sea level here. The highest point of plateau region in the Amanudis peak is 2,965 meter. There is a very above there here. The generally slope of this plateau is to be toward to the east. And the Great Plateau is a part of every ascent. The landmass is called Gandavan land. Gandavan land is most important. The Great Plateau is a part of the very ascent landmark is called Gondwana land. From the earliest time it has been to above the level of sea, and therefore it has been to subjected to the large scale generations. And is a mountain are generally of Jurassic types, and they are composed of very hard rocks which have withstood their ravages of degradations is more effective than the surrounding regions. Because of their old age, all the rivers has almost attained there is a base level and have a built-up body and the shallow valley. The dominant rock is a formation, especially those in the southern part, are their metaphoric origin with the frequently occurrence of granite. There is an important point. The river Narmada is divided. The peninsular block of India is a two part. The river Narmada divides the peninsular block of India in two part, and this region lying to be north of Narmada is called to the center is a highland, and the region lying to be south of Narmada is called their peninsular plateau.
The more commonly is referred to as the Deccan Plateaus here. A glance at the map would be point out that the Varings, the Narmada and Tapti, all the major rivers landing to be south of the Vindhyas, flow to the eastward to fall into the Bay of Bengal. The westward is flow to the Narmada and Tapti is assigned to be a fact that there has been to the flowing thought is a fault or is a rift which very probably is a causing when to the Himalayas began to the emerge from the tipsy sea of their olden time. That are important here on the chances sea of the olden time here. The first one there here are Central Highland. There is an important. The Central Highland. It is stand between river Narmada and great northern plains here. The Aravallis from to the west northern western edges of the Central Highland. This hills is extend from to Gujarat through the Rajasthan to Delhi in the northeasterly is direction for a distance about the 700 kilometer. The 700 kilometer, the height of this is about 1,500 meter in a southwest well near Delhi. They are hardly is a 400 meter height. The highest peak of the Aravalli hill is the Gursikhar is a 1,722 meter. The near of Mount Abu and Mount Abu on the border of the Gujarat and Rajasthan is a beautiful hill station. There is an important here. There is a Mount Abu and Mount Abu on the border Gujarat and Rajasthan is a beautiful hill station. The reason to be east of the Aravalli is the highest dissected and uneven Malabar plateaus from the dominant part of the central land. There is an important point here. It lies to be a northeast of the Arabial and to be north of the Vindhyachal range. The river Chambal is a bit up and the Kandran is the Malabar plateaus before the join Yamuna. The part of the central highland which extends to be east of the Malabar plateau is known as the Bundelkhand, and the further flow by there is a Bangakhand and there will now is a Chota Nagpur plateaus. The Bangakhand and there is known as the Chota Nagpur plateaus. Vindhyachal is a range formed to the southern edges of the Malabar plateau. The Maldives is a hill and the Camus Hills is a Malika range lies to about to the further east. The slope of Vindhyachal is a range to about the Narmada Valley is the absolute step and formed to the escarpment. It only is confirmed that is a Narmada flow through the Rift Valley, and this range has a very few passes. Due to this fact of Vidyas added there a barrier between to the northern and the southern part of India from a long time in a past. The valley of the Narmada is situated between to the Satpuras and the Vindhyas river. Narmada is a flow from the east to west in this valley and the fall into the Arabian Sea. There is a fall into the Arabian Sea and this valley has been to form due to be subsidence of the land marks between two Vindhyas and Satpuras. The next point is the most important here, the Peninsular Plateaus. Peninsular Plateaus is known as the Deccan Plateaus also. You know that? The Peninsular Plateaus is called to the Deccan Plateau. Deccan Plateau is called to the Peninsular Plateau. They are same here. And this is a physiographical division is the largest region of Great Indian Plateau. The shape of this plateau is rectangular. One of the sides of this triangular is marked by the line joining Kanyakumaris with the Rajmahal Hill, and this line is a pass through the Eastern Ghat. And there is a Kanyakumari with the Rajmahal Hills, and this line pass through the Eastern Ghats. The second arm is marked by the Satpura range. Mahadev Hills is a Malika range and the Rajmahal Hill. And the third arm is marked by there is a Sadhari's Western Ghat. The area of this peninsular plateau is about 7 lakh square kilometer and the height ranges from the 500 to 1000 meter above the sea level. There is a most important point here.
The Saharaui range from the sharp edges of peninsular plateau. It is a longer escarpment running parallel to the Arabian Sea, and coasts are simply breathtaking. Due to its location on the western meridian of the peninsular plateaus, the Saharaui range is also called to the Western Ghat. You know that there is an important point here. It's a longer escarpment is running parallel to the Arabian Sea, and the coastal area simply breathtaking. And due to its location on the western meridian of the peninsular plateau, the Saharaui range is also is called to the Western Ghats. The world is a ghat also is a mean a step like a mountain, and therefore this English name of the Saharaui is the meaningful here. The height of the Saharaui is increasing from north to south, and here is an Anamudi peak is a 2,695 meter, and situated in Kerala is the highest peak of southern India. There is important, and the Namu. This is a short of three junction of the Anamali range, the Cardamoms Hills and the Planning Hills. Kodai's canal is a beautifully restored, situated on the Planning Hills also here. Eastern Ghat is running from the south of west to the north from to the eastern edges of their peninsular plateau, and this range is known as the Purvadari also. The Eastern Ghat joined to the Saharaui in the Naggiris hill aboarding Karnataka and Tamil Nadu. There is Karnataka and Tamil Nadu is an important state here. The Udam Mandalam is Otrus. Is Udam Mandalam is Otrus. Is situated in the Nilgiri is the famous hill station of South India and lies in Tamil Nadu also. One is it was the summer resort to the governor of Madras presidency. The Eastern Ghat are not a continuous like to the Saharaui. Is a Mahanadis is a Godavari, Krishna, Penars and the Kaveri river have detected this range at the many places here. The plateau regions between to the Saharaui and the Eastern Ghat is known as by numerous local names different regions. Telangana is the which is extended Andhra Pradesh is the name of such as a plateau. The river of Damodars flow through there is a Chota Nagpur plateau. The valley of this river is famous for its hugs coal deposit, and besides the coal, this region is a store house of a number of other minerals that is important. And here, important point arrive here, the shape of the Great Plateaus is a triangular. It can be divided into two major parts, the center highland and the peninsular plateaus here. The Aravallis and Vindhyas, Saharaui, Purvadaris and Anamalia and Karodoma as planning is Mehrado is Malika and Satpuras as the major hill of the Great Plateaus here. The Chambas, Narmada, Tapti, Mahamadis and Godavari, Krishna and Kaveris are major river of the Great Plateaus. There is important here. यहाँ जो आया है पॉइंट भारत का विशाल पठार, देखिए भारत के विशाल पठार के बारे में अगर हम चर्चा करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात का जो है यहाँ पर उजागर होगा कि भारत का विशाल पाठ किस प्रकार है। देखिए उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में भारत विशाल पठार फैला हुआ है, यानी उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में भारतीय विशाल पठार जो है विस्तृत फैला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं भारतीय विशाल पठार जो है पूरे दक्षिण में जो है फैली हुई है और ये हमारे देश का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाग है, यानी देखा जाए तो ये हमारे देश का जो है सबसे बड़ा भौतिक विभाग है और इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है, यानी इसका जो है भाग है लगभग जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अर्थात देश का लगभग आधा भाग जो है पठारीय प्रदेश है, देश का आधा भाग जो है पठारीय प्रदेश है और यह प्राचीन जो है चट्टानों से पठारी प्रदेश का जो है निर्माण है। देखा जाए तो प्राचीन चट्टानों से बनी है ये पठार प्रदेश और इस प्रदेश में छोटे बड़े अनेक पठार पर्वत श्रृंखला और अनेक नदियां घाटी जो है विस्तृत है यहाँ पर।
भारतीय विशाल पठार की उत्तरी पश्चिम सीमा पर जो है अरावली पहाड़ी यहाँ पर है बनी हुई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि भारतीय विशाल पठार की उत्तरी पश्चिम सीमा पर जो है अरावली पहाड़ियाँ हैं और बुंदेलखंड का जो है पठार कैमूर तथा राजमहल की पहाड़ी इसकी उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री तथा पूर्वी घाट जो है विशाल पठार की क्रमशः पश्चिम और पूर्वी सीमा बनाती है। तो ये यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री तथा पूर्वी घाट विशाल पठार की क्रमशः पश्चिम और जो है पूर्वी सीमा बनाती है और इस पठार का अधिकांश धरातल जो है 400 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। यानी इस पठार का अधिकांश धरातल जो है 400 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। और देखा जाए तो इस पठार का सबसे ऊंचा तथा अनाउद्दीन शिखर है और इस पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि इसका पठार का जो सामान्य ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहते हैं विशाल पठार अत्यंत प्राचीन भूखंड है, यानी विशाल पठार जो है अत्यंत प्राचीन भूखंड है और यह भाग जो है प्राचीन जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी यह भाग जो है प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है और यह भाग प्राचीन काल से सदैव ही समुद्र तट से बाहर ऊपर ही रहा है। इसी का इसका बड़े पैमानों पर जो है नाचंदन हुआ है और इसके पर्वत जो है अवशिष्ट प्रकार के पर्वत माने जाते हैं और ये पर्वत बहुत ही कठोर शैलों के बने हुए हैं। यानी ये पर्वत देखा जाए तो बहुत ही कठोर शैलों के बने हुए हैं और इन पर जो है नाचंद्र की शक्तियाँ का जो है प्रभाव कम ही पड़ता है, जबकि इसके आसपास की भूमि की शैल अपरदित होकर बह जाती है। यानी देखा जाए तो आसपास के जो भूमि है वो शैल जो है अपरदित होकर ये बह जाना स्वाभाविक रहती है। प्राचीन होने के कारण विशाल पठार की नदियों ने अपना आधार तल जो है लगभग प्राप्त कर लिया है। यानी पठार की नदियों में अपना आधार तल जो है लगभग प्राप्त कर लिया है और अब चौड़ी और उथली घाटी में ये बहती ही रहती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। प्राचीन होने के कारण जो है विशाल पठार की नदियों ने अपना आधार जो है तल लगभग प्राप्त कर ही लिया है और ये चौड़ी तथा उथली घाटियों में बहती है। देखिए चौड़ी तथा उथली यानी उबड़ खाबड़ क्षेत्रों घाटियों में ये बहती है। भारतीय विशाल पठार की विशेष रूप से इसके दक्षिण भाग की रचना जो है कायांतरित और आग्नेय शैलों से हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रह जाता है कि भारतीय विशाल पठार की विशेष रूप से जो है इसके दक्षिण भाग की रचना जो है कायांतरित और आग्नेय शैलों से बनी हुई है। नर्मदा नदी ने इस विशाल पठार को जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आता है कि नर्मदा नदी ने इसे विशाल पठार को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। नर्मदा नदी के जो है ऊपरी भाग को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं तथा दक्षिण भाग को जो है प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इस भाग का अधिक जो है प्रचलित नाम दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। यानी इस भाग का अधिकतर जो है प्रचलित नाम दक्कन के पठार कहा जाता है। कहते हैं अगर हम पहले पॉइंट की अगर बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है कि मध्यवर्ती उच्च भूमि, यानी मध्यवर्ती उच्च भूमि के क्या यहाँ विशेषता है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि मध्यवर्ती उच्च भूमि क्या है। कहते हैं नर्मदा नदी के जो है उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में फैली हुई है। यानी नर्मदा नदी के उत्तर तथा उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में फैली हुई है और इसके पश्चिम भाग में जो है अरावली है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी उत्तर तथा उत्तर विशाल मैदान के दक्षिण में फैली हुई है और इसके पश्चिम भाग में अरावली है। अरावली गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक जो है उत्तर पूर्वी दिशा में 700 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। तो दिल्ली तक जो है उत्तर पूर्वी दिशा में 700 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है और दिल्ली के निकट इनकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई जो है 400 मीटर दक्षिण में 1500 मीटर तक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि दिल्ली के निकट जो इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई 400 मीटर है और दक्षिण में जो है 1500 मीटर तक है। कहते हैं गुरु शिखर जो कि 1722 किलोमीटर है और अरावली का स्वच्छ शिखर के रूप में भी जाना जाता है। यानी अरावली का अगर हम देखें तो सबसे ऊंचा शिखर का नाम है गुरु शिखर। तो ये कभी कभी जो है एमसीक्यू में आ जाता है, जो बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि गुरु शिखर जो है किसका पार्ट है। तो आपको पता होना चाहिए अरावली का स्वच्छ शिखर के रूप में इसको जानते हैं। और गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित माउंट आबू एक सुंदर पर्वतीय नगर है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट आता है कि माउंट आबू किस क्षेत्र में
है बसा हुआ। तो ये जो है गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ना तो ये गुजरात में ना ही राजस्थान में है। ये जो है माउंट आबू एक सुंदर पर्वतीय नगर है जो कि गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। अरावली की पूर्व भूमि बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है और मध्यवर्ती उच्च भूमि का एक भाग मलबा के पठार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह भाग जो है अरावली के दक्षिण पूर्व तथा विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में ये विस्तृत है। कहते हैं चंबल और बेतावा नदी इस क्षेत्र का जल बहाकर यमुना में ले जाती है। ये भी काफ़ी दिलचस्प बात आती है कि चंबल और बेतावा नदी इस क्षेत्र का जल बहाकर यमुना में ले जाती है। मध्यवर्ती भूमि का वह भाग जो मलबा पठार के पूर्व में फैला हुआ है बुंदेलखंड के पठार के नाम से ये विख्यात है। और बुंदेलखंड के पूर्व में जो है विजयखंड का पठार था, इसके और पूर्व में छोटा नागपुर का पठार भी है। कहते हैं मध्यवर्ती भूमि की दक्षिणतम भाग में विंध्याचल और उत्तर पूर्व में जो है महादेव कैम्यूर तथा मैकाल की पहाड़ियाँ हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात अगर हम करें नर्मदा घाटी की और विंध्याचल श्रेणी की, तो कहते हैं कि ये जो है एकदम खड़े कगार है, यानी एकदम खड़े कगार की तरह है। और इसके इसी बात की पुष्टि होती है कि नर्मदा एक ब्रश या रिफ्ट घाटी में बहती है और इस श्रेणी में दरारें बहुत ही कम नज़र आती है। यानी इस श्रेणी में दरारों जो है बहुत ही कम होगा। आप सोचिएगा दरारें क्या होता है। कहते हैं पर्वतमालाओं के बीच में जो जगह खाली होती है जहाँ यातायात के लिए यूज़ की जाती है वो दरारें होती है। और ये पंजाब साइड दरारें काफ़ी देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि पंजाब साइड से जो है बाहर आक्रमणकारी जो है दरारों के अंतर्गत ही जो है भारत में प्रवेश किया करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अंततः प्राचीन काल में यह काफ़ी समय तक उत्तर दक्षिण भारत के बीच अवरोध भी बना रहा। यानी अगर देखा जाए तो ये पर्वतमालाएं काफ़ी महत्वपूर्ण घाटियां हैं जो कि भारत के लिए अवरोध कभी पे पैदा किया है जो दूसरे प्राचीन लोगों के लिए। कहते हैं विंध्याचल और सतपुरा के मध्य नर्मदा नदी घाटी है और इसी घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। कहते हैं विंध्याचल और सतपुरा श्रेणी के बीच के भूभाग के नीचे की ओर धंसने से इस घाटी का निर्माण हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि विंध्याचल और सतपुरा श्रेणी के बीच के भूभाग के नीचे की ओर धंसने से इस घाटी का जो है निर्माण हुआ है। उसके पश्चात दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम व्यू के लिए। देखिए प्रायद्वीपीय पठार, कई जगह आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दक्कन, इसको दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है। चाहे आप इसको दक्कन के पठार कर ले या प्रायद्वीपीय पठार कर ले, बात एक ही रहता है। यह भारतीय विशाल पठार का सबसे बड़ा भू आकृति भाग है और इस पठार की आकृति जो है त्रिभुज के समान ही है। यानी देखा जाए तो यह भारतीय विशाल पठार का सबसे बड़ा भू आकृति विभाग है और इस पठार की आकृति जो है त्रिभुज के समान ही है। और इसकी एक भुजा जो है कन्याकुमारी से राजमहल पहाड़ियों को जोड़ने वाला एक रेखा है। यानी इसकी एक भुजा जो है कन्याकुमारी से राजमहल जो है पहाड़ियों को जोड़ने वाली रेखा है जो पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। और दूसरी भुजा जो है सतपुरा श्रेणी है जहां महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी और राजमहल की पहाड़ियां हैं। यानी दूसरी भुजा जो है सतपुरा श्रेणी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी और राजमहल की पहाड़ियां हैं। और तीसरी भुजा जो है सह्याद्री श्रेणी जो कि पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का कुल क्षेत्रफल का लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा जो है ऊंचाई जो है 500 मीटर से 1000 मीटर तक है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में सह्याद्री श्रेणी है। अरब सागर के तट के साथ फैले खड़े ढाल वाले सह्याद्री जो है इसमें कारी है और पश्चिम में स्थित होने के कारण इसका जो है एक नाम जो है पश्चिम घाट भी है। यानी पश्चिम में स्थित होने के कारण इसको जो है पश्चिम घाट के रूप में जाना जाता है या पश्चिम घाट के रूप में पुकारा जाता है। घाट शब्द का अर्थ होता है पहाड़। देखिए यहाँ पर घाट शब्द का अर्थ जो बताया गया है उसका अर्थ होता है पहाड़। अंततः इसका यह नाम काफ़ी जो है सार्थक सिद्ध होता है। सह्याद्री की जो है औसत ऊंचाई उत्तर के दक्षिण की ओर बढ़ती ही जाती है। केरल में स्थित जो है अनामुदी शिखर जो कि 2695 मीटर है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर के रूप में जाना जाता है। अनामुदी जो है अनामलाई श्रेणी, कैंडोमम्स पहाड़ियाँ और पलानी पहाड़ियाँ का जो है मिलन बिंदु है। पलानी पहाड़ियों में जैकेडो कानस एक समृद्ध पर्वतीय नगर के रूप में देखा जा सकता है।
पूर्वी घाट जो है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व भाग में ये फैले हुए हैं और इन्हें जो पर्वतीय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ये श्रेणी जो है तमिलनाडु कर्नाटक की सीमा पर स्थित जो है नीलगिरी पर समुद्री पश्चिमी घाट से मिल जाती है। नीलगिरी में जो उद्गम मंडलम जो है ऊटी नगर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है। यानी देखा जाए तो नीलगिरी में जो है उद्गमंडलम यानी ऊटी के नाम से जानते हैं, आपने सुना होगा कभी ऊटी। तो ये ऊटी जो है दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध नगर है और कहते हैं ये नगर जो है तमिलनाडु में स्थित है और स्वतंत्रता से पूर्व यह मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर और जो है ग्रीष्मकालीन निवास स्थान हुआ करता था। समुद्री श्रेणी की भांति यह जो है अविच्छिन्न निरंतर नहीं है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी नदियों ने इसे कई स्थानों पर खंडित कर दिया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सह्याद्री और पूर्वाद्री जो है पूर्वी घाट के बीच के पठारी भाग को कई स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में फैला तेलंगाना का जो है पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग को बुंदेलखंड और छोटा नागपुर के पठार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली दामोदर नदी की घाटी में हमारे देश के प्रसिद्ध कोयला पट्टी भी है। यहाँ और भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम पॉइंटों की डिस्कस करें तो ये बात साफ हो जाता है कि विशाल पठार की आकृति जो है त्रिभुज के समान ही है और इसके दो प्रमुख विभाग हैं। एक तो है पर्वतीय उच्च भूमि तथा दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अरावली, विंध्याचल, सह्याद्री, पूर्वोत्तरी और अनामालाई और कैडोमम, पलानी, महादेव, मोकाल और सतपुड़ा विशाल पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। तो अगर पहाड़ियों के नाम आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारे जो है पहाड़ियाँ हैं। चंबल, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रमुख पठार नदियां हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को दर्शाया गया है और ये पॉइंट को आपको नोट डाउन भी कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। तो इसको अच्छे से करना है, समझना है, सोचना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों से शेयर भी करना है और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। अगर आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे, बाद में रिसर्च करोगे तो आपको बड़ी ही प्रॉब्लम आएगी। कई बच्चों ने इस बात को कमेंट भी किया है। इसलिए त्रिपाठी सेंटर ने जो है प्ले लिस्ट बनाया है जिसमें आपको आपकी कक्षा का जो है हर वीडियो उपलब्ध रहेगा। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द जो है त्रिपाठी सेंटर के साथ जुड़िए और जो है बच्चे हैं चाहे 8th क्लास के हों, चाहे 9th हो, 10th हो, +2 हो, NIS बोर्ड हो, जो भी क्लास के बच्चे हों, सभी वीडियो जो है त्रिपाठी सेंटर पे उपलब्ध हो जाएगा।